Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, in this session, we primarily are on the four variable map. As we, in the previous sessions, we have already gone through the two variable and also the three variable map. And this time, we are interested to know the four variable map. So, the first of all, the four variable map structure, as you can see from here. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. We start with the recitation of Holy Quran. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay. Welcome you on this session. And in this session, we are primarily working on four variable map. So in four variable map, as we have gone through this construction earlier, that this map is primarily constructed with the minterms 0, 1, and then 2. Similarly, 3 will come afterwards. So remember the gray code, and then 4, 5, 6, and then come the 7. And this pattern on the right side will be repeated on the bottom as well. So we start from 8. So M8, 9, 10, 11, and then this 11 lead us to 12, 13, 14, and 15. So you do not need to remember this because I will give you this diagram in the exam. Okay, if exams are, for example, if the exams are physical, then you will be given this diagram. So you do not need to remember all these things. What you have to remember is how to place the variable, number one, and number two, how to make the pairs, and number three, how to write the final expression. Okay, so let me write it here, that what you should know is number one, how function can be expressed into the map. Number two, the groups are the pairing. And the final thing is the simplified expression, the answer. Okay, the final thing is the answer.
how to write the answer. That's it. और अलग तरीके से हमने सीखा है. आई एम श्योर के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, if they are following those steps, can easily do these four variable map as well. In addition, we have a software online in which we can place the function, and then we can see what type of answer and also the circuit will look like. Okay, so moving ahead with the first example, that simplify a function of four variables in which these variables primarily in the truth table has value 1. Okay, these minterms. Remember, this is a sum of four products. Minterms are primarily the products, and this sum sign shows sum of product. So this is a one way of representing a function. So we have to represent 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 7 is not here. 9, then 12, 13, and finally 14 into the map. So this way, how the map is primarily the function is placed inside the map. So 0, 1, 2, 4, 5, 6, then 8, 9, and then 12, 13, and 14. And then the second task is to actually identify the pairs, the groups, the maximum group. So as we can see from here, the maximum number of ones in this group, and we need to count the ones 1 2 3 4 5 6 7 8. So 2 की पावर में आ रहे हैं 8, 2 की पावर में आ रहे हैं. So this is a group of numbers. Okay, then we know that these walls are primarily combined. Okay, then we have another group which primarily combine these two ones with these two ones. Okay, so that's way these two ones are primarily combined. So this is another pair. Let me change the color. Okay, so I change the color. Now I move towards another group which is like this. Okay, so this is another group of ones. So this way we group the we make the groups, and once we make the groups, we can write the expressions from out from these groups. So I am just removing these so that I can focus on primarily one group. So in this one group, I can see that X and Y, W and X, okay, W and X on this direction. W is also changing from 0, 0 to 1, 1. X is also changing from 0, 0 to 1, 1. So I will not consider this. इसको मैं नहीं अपने आंसर में कंसिडर नहीं करूँ. Then I move on the top, which is YZ. So I see Y is 0, but Z is changing from 0 to 1. So because Z is changing from 0 to 1, so Z is also not included. Then what thing only included is Y, and Y is included as 0 because the value of Y is 0. So I assign this group as Y prime to this group. Okay, so this will be part of my answer. Then I move towards the next pair, and the next pair I let's say I take this one. Okay, this one. So in this group, if I can see, it also has a label like X, label as X. Okay,
So if I can see from here that 0 1 and 1 1, W is changing from 0 to 1, so I do not take W. X is take 1 and X is also take 1 here, so I take X first from this side and then I move towards the top. जैसे एक टेबल में वैल्यूज होती हैं, so I move on the top. So I see 0 0 is here and 1 0 is here. That means Y value is changing from 0 and 1. So I do not take Y, whereas Z value is 0 and Z value is 0. It is constant in, that means it is 0 for both cases. So I take Z prime in my answer. Okay. So in this case, I write X Z prime and it becomes the part of my answer, like Y prime in earlier case. Then I move towards the next pair, and in the next pair, first off I had to draw the next pair, and that is the next pair. Remember, we need to take the maximum number of ones. अगरचे मैं इसका एक और एक का भी बना सकता हूँ, but it is necessary कि we take the maximum number of ones. We cannot take a group of 6 ones because the allowed is 2, 4, 8, 16. These are the allowed. So when I write the answer is simple. That we know that W is 0 for both cases. So I write W prime. And then I move toward, ये हम पहले solve कर चुके हैं, that is Z prime. So this will become the part of my answer. So this way, the 4 variable map is solved. The main thing is how you can make those pairs, group of ones, and then write the expression. So this function is primarily, as you can see, with all ones, and we have finally simplified it to this form. Okay, I would like to primarily verify this expression by using the web site. So this was the question. So I go to the website. And I select the 4 variable map. And in the 4 variable map, I have to select 0, 1, 2, 4, 5, 6. So 0, 1, 2, 4, 5, 6. I make them 1. 8, 9, 12. So 8, 9, 12. And then 13 and 14. Okay, 13 and 14. So it's done. So I submit it. And it give me the answer. It give me the groups. How he made the groups. Because it is in ABCD. So A can be W and B can be X. Similarly, C can be Y and D can be Z. Okay. So it give me the groups, how the software made the groups, and the final answer here, which actually resembles the our answer. And this is the circuit, how it actually look like. As you can see, all the inputs with their active logic 1 and 0 are drawn, and then a connection to the required input is made to the gate. And similarly, there are AND gates and there are
or plates. Okay, see a sum of product form. So this is how a verification can be done by using the map, and you can compare your answer, that the answer of this function after simplification is this. So we do not need any Boolean algebra or postulates. We can solve this through Karnaugh map. So in this next, before going to next example, let me ask students if they have any question. Okay. Ji Faisal, do you have any question? सर हाँ, इसी सवाल में मेरा एक सवाल है कि ये जो है क्या है, इसके अंदर हम M2 M6 का पेयर और M6 और 14 का पेयर नहीं बना सकते? मैं आपको एनोटेशंस दे रहा हूं, आप जरा एनोटेशन से जो है वो मुझे थोड़ा सा समझा दें। ओके, मैं आपको एनोटेशंस का राइट दे दिया है, आप एनोटेशन यूज करते हुए इस ग्रुप की बात कर रहे हो। ठीक है, सवाल करें। मैं कह रहा हूँ हम ये दो पेयर नहीं बना सकते इसके बजाय कि हम इसको फिर M2 को M0 के साथ कनेक्ट करें और इस तरह जिस तरह आपने किया। आप पेयर बना सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सिंप्लीफाइड नहीं होगा। वो आंसर जो है ना, उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी नहीं होगी। सर आपका यकीनन होगा, आंसर होगा, लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स है वो नहीं होंगे उसमें। इट इज नॉट सिंप्लीफाइड। सही है सर। और कोई सवाल है फैसल आपका? नहीं सर। ओके, मुस्तफ़ा कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मुस्तफ़ा, आप पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा एक सवाल है। जी बेटा पूछें। सर इसमें हम जो KMA पढ़ रहे हैं ना, इसमें आप जो 3-4 एग्जांपल किए हैं, सब में आपने ये यूज किया है ग्रे कोड। क्या ये लाजमी है? अगर इसके बगैर नहीं हो सकता? ये पहले जो है वो मुस्तफ़ा का सवाल रिपीट करते हैं। मुस्तफ़ा कहते हैं क्या इसमें ग्रे कोड जो यूज़ हुआ है, इसके अलावा भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं? असल में ये मैप मेथड डिज़ाइन ही ग्रे कोड के ऊपर हुआ है, तो ये उसका जो प्रोसीजर है ना, उसका हिस्सा है। ठीक है मुस्तफ़ा? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये सिंपली बगैर ग्रे कोड के, मतलब सिंपली उसको जो बाइनरी है 0 0 0 1 वो फिर आपका मेथड होगा। वो आपका मेथड होगा अगर आप 1 0 और 1 1 करके करेंगे, 1 क्योंकि ये मैं किताब में 0 ये हम जो कर रहे हैं, ये यूं समझे एक फार्मूला है और उस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। जी मुस्तफ़ा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, आगे। हाँ, असल में ये प्रोसीजर है ना, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। अगर आप उसको 1 0 1 1 करके भी देखें, तो क्या इससे आपका आंसर जो है वो वही आ रहा है जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आ रहा है? तो वो यकीनन वो नहीं होगा, वो एक डिफरेंट सर्किट बन जाएगा जो उस तरीके से फंक्शन नहीं करेगा जिस तरीके से ये चाह रहे होंगे। तो ऐसा कोई मेथड नहीं जिसमें जो सिंपल ग्रे कोड के अलावा कोई यूज किया हो, ऐसा नहीं मेथड अभी मैप में नहीं है। ठीक है ओके सर। मुस्तफ़ा, आपका कोई और सवाल है? नहीं सर। ओके, हिना सुलेमान जी बेटा आप बोलें। मदीहा, दिलावर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलावर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? दुआ है। अच्छा बात सुनिए, वो जो वफात हुई थी वो क्या आपके कोई रिलेटिव हैं? सर नाना है मेरे।
नाना की हुई थी। अल्लाह ताला उनको दुआ जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। एक दुआ आमीन आमीन। जल्दी से, ठीक है, जल्दी से दुआ मग़फ़िरत। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला भाई मग़फ़िरत करे। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी दिलावर, आपका कोई सवाल है बेटा? सर फिलहाल तो मैं असल में मेरा पिछला लेक्चर रह गया था, वो मैं उसके वीडियो देख लूँगा तो फिर इंशाल्लाह ये थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा। अभी तो फिलहाल कोई सवाल है नहीं। ओके, सुमैया आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नो सर। तहरीम आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, थैंक यू। मदिया से मैं दोबारा पूछना चाहूँगा। जी बेटा, आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे चलेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे और उस एग्जांपल में जो है वो एक चीज़ आ जाएगी, डू नॉट केयर कंडीशन। ओके, ओके, डू नॉट केयर कंडीशंस, इनको समझना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा फंक्शन जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट होता है जो कहलाता है डू नॉट केयर कंडीशन। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, और फंक्शन ये दिया हुआ है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है, एंड विच हैज द डू नॉट केयर कंडीशंस, यानी उसकी कंडीशंस भी दी हुई है। सो दिस इज अ फंक्शन एंड दीज आर द डू नॉट केयर कंडीशंस। अच्छा, डू नॉट केयर कंडीशन में जो है वी हैव ए चॉइस, वी कैन टेक, वी रिप्रेजेंट दिस एज x and we can decide if x can be 0 or x can be 1. Okay, this is our decision. Okay, x can be 0, x can be 1. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मैप में एक जगह पे डू नॉट केयर कंडीशन आ गई है, ओके, एक और जगह पे भी आ गई है, ओके, 2 जगहों पे आ गई, तो अब इट इज आवर चॉइस कि हम इसको 0 रख लें और इसको 1 रख लें, या फिर इसको 0 रख लें, इसको 1 रख लें, या दोनों को 0 रख लें, या दोनों को 1 रख लें। सो दिस इज आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस होगी। और हमारी चॉइस क्या होगी कि हम वहां 1 कर लेंगे जहां हमारे पेयर बन रहे हो, और वहां 0 कर लेंगे जहां हमारे पेयर ना बन रहे हो। तो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। जब हम मैप में लिखेंगे तो मैप में जो है हम इनको 1 लिखेंगे और इसको x लिखेंगे। ओके, पहले इस केस को कंसीडर कीजिए। जब हमने सब जगहों पे 1 लिख दिया, जहां 1 आ रहा था वहां 1 लिख दिया, और जहां x था वहां x लिख दिया। अब इसके बाद हमने पेयर देखे कि पेयर कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ इसने कहा है कि आप इस तरह के पेयर बना लें और इस तरह का पेयर बना लें। तो इस सूरत में ये x जो है इसको 1 ले लें, इस x को 1 ले लें, इस x को 0 ले लें। सो बाय दिस वे
जो है वो 4 वंस का पेयर बन जाए और फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक ये आंसर है, ये आंसर आंसर तो मालूम करना हमें आता है, सिर्फ पेयर सीख रहे हैं यहाँ पे, पेयर बनाना। तो एक का आंसर तो ये आ गया। दूसरे किसी एक और स्टूडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस x को 1 ले लें और इन दोनों को 0 कर लें, इस तरह हमारे ये वाले ग्रुप पेयर बन जाएगा और वो तो वैसे ही रहेगा। तो इस सूरत में आंसर ये आ जाएगा। तो दो डिफरेंट आंसर आएंगे, लेकिन लॉजिक सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, सर्किट सेम फंक्शनलिटी जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि आपने दोनों सवाल जो है वो निकाल लिए, दोनों आंसर निकाल लिए, और आपसे अब मैं कहता हूं कि इसमें से चॉइस करेंगे, ये वाला आप रखना चाह रहे हैं तो ये वाला रखना चाह रहे हैं, तो मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर दे। ओके, ये कौन सा सवाल रखना चाह रहे हैं फंक्शन? चले फैसल से पूछ लेते हैं, सबसे ऊपर वही है। ओके फैसल, आप बताइए बेटा, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, ए लेंगे या बी लेंगे? बी लूंगा सर। बी लेंगे, क्यों लेंगे बी? सर उसमें मुझे थोड़ी आसानी लग गई। नहीं, कोई आसानी नजर भी तो आ रही है ना, कोई वो क्या आसानी है? जी, उसमें आसानी ये है कि सर उसे पेयर से जी बोले बोले बोले। जी सर, मेरा भी एक सवाल है। सवाल बाद में, पहले इस सवाल का जवाब दें। जी सवाल का सर, फैसल ने बी सेलेक्ट किया है, बी क्यों किया भाई? शायद उसको आसानी है इसमें, नजर आ रहा है कुछ। देखिए बेटा, जिसने सवाल करे वो जवाब दे। देखें इसमें एफ में अगर आप देखें तो 4 वेरिएबल है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। इसमें देखें, इसमें 3 वेरिएबल है, डब्ल्यू वाई और जेड। तो आपने 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, दैट्स इट। सर्किट बनाने में आसानी हो गई। सो एनी हो, इट आल्सो डिपेंड्स कि जो है वो आप कैसे चूज करते हैं। बोथ आंसर्स आर राइट, both answers are right, because function is not completely specified and there are don't care conditions exist. ओके, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी सर, मैं पूछूं? जी बेटा पूछे, सवाल पूछे। जी मुस्तफा कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बेटा पूछे। x1 x को पेयर लिया, जो पहला वाला है, फिर आपने एक x को उसमें मतलब छोड़ दिया है, जो दूसरे वाले में वो दोनों x को छोड़ दिया, फिर वो एक x को लिया, उसके साथ पेयर बना दिया सर आपने। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उन दोनों के साथ और ये x के साथ भी मतलब पेयर तो बन सकता है, ये तीनों x को लेके भी एक पेयर बन सकता है, मतलब तीसरा कंडीशन इसका। जी मुस्तफा, आपका सवाल हो गया? जी सर। आप शायद ये पूछ रहे हैं कि पेयर जो है उसकी कंडीशन क्या है। पेयर की कंडीशन ये है कि 2 वंस का पेयर बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है, 16 का बन सकता है। ठीक है, 2 4 8 और 16। तो यहां हमें डोंट केयर कंडीशंस अगर तमाम जीरो कर दें, तमाम जीरो कर दें, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमारा जो मैप बनेगा वो सिर्फ ये वाला मैप बनेगा। ठीक है,
और इस तरीके से ये वाला मैप बन जाए। ये आंसर तो ठीक होगा, लेकिन ये सोल्यूशन जो है ना, ये मिनिमल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा प्रेफर्ड है 4 का पेयर। 4 का अगर ग्रुप बनाएंगे वो सिंप्लीफाइड होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन होती चली जाएगी, सिंप्लीफाइड आंसर आता चला जाएगा। आप सबको 1 कर दें, 1 1 1, तो सबको 1 1 करने से आंसर जो है उसमें एक पेयर, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इसमें 3 ग्रुप बन जाएंगे, तो आंसर फिर भी सिंप्लीफाई नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा के जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर हम 3 का बनाना चाहें तो 3 का नहीं बना सकते, वो 3 का तो डिफाइंड ही नहीं। दूसरा, अगर 2 का बनाना चाहें तो वो आंसर जो है ना सिंप्लीफाइड नहीं होगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अगर नहीं आया फिर भी पूछ लें, दोबारा सवाल पूछ लें। जी मुस्तफ़ा। जी सर समझ नहीं आ रहा सर। समझ में आ गया, पक्की बात है मुस्तफ़ा, देख लो सर। अब मैं आपने कह दिया, मुझे समझ में आ गया। Anyhow, okay, thank you very much. Now we are moving ahead and this chapter is finished for जो हमने topics करने थे. Now we are moving primarily towards the problems. मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है कि 3 वेरिएबल का मैप जो है ना वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना। 4 वेरिएबल का मैप जो है ना, इट इज़ रेयर, बहुत कम इसके यूज पड़ता है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 3.4। अच्छा, क्विज भी रह गया आज, एक छोटा सा क्विज भी करना था हमने, बहरहाल नहीं हो, एक ही दफ़ा कंबाइन कर लेंगे। सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप्स। अब ये आप तमाम सवाल कर सकते हैं 3.4 के। मैं कहता हूँ वो सवाल कर लें जिनके आंसर दिए हुए हैं, ताकि उसको आसानी से मैप कर सकें। और उसके बाद ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 4 वेरिएबल। कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कोशिश आप 3.4 3.5 तक रखें। यू ऑलरेडी नो किस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है। ओके, डोंट केयर कंडीशंस। थ्री 3.15, simplify the Boolean function and together with the don't care condition D, and then express the simplified function in sum of minterm form. So इस B को अटेम्प्ट कर लीजिए, और इसको अब हम देखते हैं कि क्या इसको हम मैप से कर सकते हैं। वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे कर सकते हैं बी पार्ट को। इसको देखते हैं, 0 6 8 13 एंड 14। जीरो 6 8 13 14, 6 8 13 and 14. Don't care conditions 2 4 and 10, 2 4 and 10. ओके, सबमिट कर दिया हमने। और इसमें जो है वो x बता दिया कि x की लोकेशन कहाँ है। मैप में x की लोकेशन बता दी, x यहाँ है, x यहाँ है। तो पेयर तो बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। इसके बाद जो है यहाँ कोई पेयर बन ही नहीं रहा भाई,
यहाँ चारों वेरिएबल आएंगे, एक पेयर यहाँ बन रहा है, उसके बाद ये कॉर्नर के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर यहाँ बन रहा है, ये नहीं बन रहा पेयर, इसके बाद जो है वो एक पेयर ये बन रहा है, और ये चारों कॉर्नर्स को मिला लें, चारों कॉर्नर्स को मिला लें, तो अब इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे होगा। पहले ये वाला ले लें, ये जो पहले सबसे पहले बनाया था, तो इसमें ये तो खत्म हो जाएंगे लेफ्ट साइड वाले, क्योंकि ये पूरे को कवर कर रहा है, तो इसका आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है वही आ जाएगा, तो सी और डी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद ये वाला ग्रुप जो है इसको जरा चेक कर लेते हैं। इस ग्रुप में अगर आप देखें तो ए बार है, बी बार और बी आपस में खत्म हो गए, ए बार आ जाएगा, यानी ए प्राइम आ जाएगा, और उसके बाद अगर इस कॉलम को और इस कॉलम को देखें तो सी बार है और डी बार है, डी बार कंसिस्टेंट है, डी बार ले लेंगे। इसके बाद कॉर्नर्स को देखना है, कॉर्नर्स में देखें राइट साइड पे यहाँ से ए बार बी बार है और ए बी बार है, तो बी बार यहाँ से आ जाएगा, और कॉर्नर में ऊपर से अगर देखें तो सी डी है और सी डी बार है, तो यहाँ से भी डी बार आ जाएगा। तो ये तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि सी प्लस ए बार प्लस बी बार, और डी बार तो सब में कॉमन है, तो बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ना वो बन गया। अभी देख लेते हैं इसमें क्या आंसर आया। अच्छा, एक चीज रह गई थी, उसको भी देख लेते हैं, एक मिनट। ये इसका आंसर देखें क्या होगा। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ए बी है, और ऊपर देखेंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट डी। इसमें चारों वेरिएबल्स आ जाएंगे, पेयर नहीं बन रहा ना, तो ये भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि इसने क्या लिखा है। इसने कुछ इस तरीके से ग्रुप बनाया, डी बार सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी। मेरे ख्याल में शायद हमने थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई बना दिया। ये इसका सर्किट आ गया, और ये ट्रुथ टेबल तो खैर हमने खुद दिया था इसे। Okay, beta, any question here? So this way you can verify your answer. सर जी बेटा बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला जो 13 मिड टर्म है, मिड टर्म 13, उसको उन्होंने लिखा हुआ है ए बी सी बार डी, तो सर ये वाला हमने क्यों लिया है मिड टर्म 13? असल में उसका पेयर बना ही नहीं था, जिसका पेयर बनेगा नहीं तो जिसका पेयर नहीं होगा उसको हम, उसमें तमाम वेरिएबल्स आएंगे, तो उसको हम काउंट करेंगे। उसमें तमाम वेरिएबल्स आएंगे, ए बी सी डी तीनों वेरिएबल्स आएंगे। इसका आंसर देख लेते हैं ना, 3.15 बी
ओके 3.15b ओके सर। ये देखें इसका ये आंसर, मेरे ख्याल में ये वही है जो उसने निकाला है।